Okay, ji. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing great and you people are safe at homes. Today we are going to start classical approach of probability. What we've done in previous lecture was all about counting sample points. It is specifically used when you have large number of sample points in any situation, and it's impossible to enlist all of those sample points in a particular sample space. So we have some of the rules in order to determine that how many sample points will exist for the particular experiment or the random experiment. So we have rule of multiplication, rule of permutation, rule of combination. So what was rule of combination and rule of permutation? Simply, when you need to select R objects out of N objects, but with respect to some sort of order, then you use the term permutation. But when order is not important at all, you use rule of combination. So two rules you've studied, rule of combination and rule of permutation. So we had two different formulas. The one was for a combination and the other one was for permutation. So just you need to determine that when order matters, you will be approaching to permutation. And when order doesn't matter, you will be approaching to combination. These were the things in previous lecture which we have studied. Then comes the probability of events. We've studied the classical approach of probability in the previous lecture. It was just that, for instance, if you have a specific event and you need to compute the probability of that event, how you'll find the probability? Simply the ratio of number of favorable outcomes in that particular event divided by number of sample points in the entire sample space. So this was the classical approach of probability. So today we'll be understanding how the classical approach will be used in any scenario-based question. Firstly, you need to define the events. Whatever is asked in the question, you'll be just defining that event. Then you'll be using the classical approach. What is classical approach? Simply the ratio of number of favorable outcomes in that specific event divided by number of sample points in the entire sample space. This is the classical approach of probability. Another end, we'll be interpreting the results. So coming towards the question, 6 white balls and 4 black balls, which are indistinguishable apart from color, are placed in a bag. If 6 balls are taken from the bag, find the probability of there being 3 white and 3 black balls. अब आपके पास टोटल क्या है? टोटल यू हैव 10 balls. 10 में से कितनी white और कितनी black है? There are 6 white and 4 black balls. So that means you have a total of 10 balls. And what you need to do is you have to select 6 balls out of these 10 balls. Find the probability of there being 3 white and 3 black balls. Means 10 balls में से आपने 6 balls तो select करनी है. Now what you need to find is you need to compute the probability कि जो 6 balls आप choose करोगे उन 6 balls में से 3 जो होंगी वो white होंगी and 3 जो होंगी वो black होंगी. तो किस तरह पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? हो सकता है पहली व्हाइट हो फिर ब्लैक हो फिर व्हाइट हो फिर ब्लैक हो अप टिल सो ऑन, या हो सकता है पहली 2 व्हाइट हैं फिर 2 ब्लैक हैं, इस तरह करके भी हो सकता है, या हो सकता है पहली व्हाइट फिर ब्लैक देन व्हाइट फिर ब्लैक, इस तरह करके भी हो सकता है. तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपके पास बनते हैं. तो हमने ऑलरेडी रूल ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ा है. जब आपके पास किसी भी एक्सपेरिमेंट में सैम्पल पॉइंट्स काफ़ी लार्ज हो जाए, उनको एनालिस्ट करना पॉसिबल ना हो, लेकिन हम उस चीज़ को डिटर्मिन करना चाह रहे हों कि कितने फेवरेबल आउटकम्स उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, सो वी नीड टू कंप्यूट और वी नीड टू यूज अ कॉम्बिनेशन इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. So simply, firstly, आपसे कह रहे हैं probability निकालो 3 white and 3 black balls की. So you'll just define the event by using this event A, that 3 white and 3 black balls are selected.
Now, the classical approach is defined as the probability of A, which is equal to number of favorable outcomes in that particular event A divided by number of sample points in the entire sample space. तो आप करोगे क्या? ओके, टोटल आपके पास 10 बॉल्स हैं. 10 बॉल्स में से आपने कितनी बॉल्स चूज करनी है? यू नीड टू सिलेक्ट 6 बॉल्स. तो 10 में से 6 बॉल्स के आने के कितने चांसेस है? वो 6 पॉसिबिलिटीज हैं. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं. जब हमने n फेवरेबल आउटकम्स में से r फेवरेबल आउटकम्स चूज करनी हो, सॉरी n टोटल सैंपल पॉइंट्स में से r फेवरेबल आउटकम्स को चूज करना हो, तो हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जब ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती. और यूजुअली जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे उन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में हम कॉम्बिनेशन ही यूज करते हैं. वी डू नॉट यूज परमिटेशन. So these total balls are categorized as the one is white in color and the other one is black in color, and you have and you have 6 white and 4 black balls. So 6 white and 4 black balls are equal to total 10 balls. Now, out of these 10 balls, you have to select the 6 balls. Now, compute the probability that 3 white and 3 black balls are selected. So, out of these 6 balls, 3 white balls will be selected, and out of these 4 black balls, 3 black balls will be selected. So, the probability is probability of A, that is equal to number of favorable outcomes in an event A divided by number of sample points in the entire sample space. Just ignore this messy handwriting. Okay, so number of favorables in an event A. Event A आपके पास क्या है? वो ये portion है. So how you'll just write it? 6C3. That means 6 white balls में से 3 white balls आने के क्या chances है? वो 6C3 possibilities हैं. Multiply by 4 black balls में से 3 black balls आने के क्या chances है? वो 4C3 chances हैं. ठीक है, divided by, अब आपके पास number of sample points in the entire sample space. Entire sample space में आपके पास ये वाला portion आता है, इसमें टोटल 10 बॉल्स थी और उन 10 बॉल्स में से आपने 6 बॉल्स की सिलेक्शन करनी है. तो 10C6. All right. So this is your probability of event A, that out of 6 white and 4 black balls, 3 white balls and 3 black balls will be selected. हम इनको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक ही एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, तो हमने एट ए टाइम 6 बॉल्स की सिलेक्शन करनी है और 6 बॉल्स में से 3 वाइट है और 3 ब्लैक है. हो सकता है पहली वाइट हो फिर ब्लैक हो, फिर वाइट हो फिर ब्लैक हो, फिर वाइट हो फिर ब्लैक हो सकता है 2 वाइट हो फिर ब्लैक हो, अगेन ब्लैक हो फिर वाइट हो. इस तरह का भी हो सकता है. या हो सकता है तीनों वाइट हो फिर तीनों ब्लैक हो. मतलब पैटर्न तो कुछ भी हो सकता है, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है. कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, वो पॉसिबिलिटीज हमें कॉम्बिनेशन के थ्रू पता चल जाती है. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग कॉम्बिनेशन ओवर हियर. Okay, so coming towards the solution, number of favorable outcomes in an event A divided by number of sample points in the entire sample space. तो आप यहाँ पे देखो, आपके पास number of favorable outcomes event A में क्या आ गई? 6 white balls में से 3 white balls and 4 black balls में से 3 black balls. तो वो टोटल 80 पॉसिबिलिटीज बनती है. अब वही वाली बात है, सैम्पल स्पेस अब हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि हम ट्री डायग्राम के थ्रू सैम्पल स्पेस बना लेते हैं, लेकिन अगर 80 सैम्पल पॉइंट्स हैं तो वो काफी लार्ज हो गए हैं, उनको एनालिस्ट करना पॉसिबल नहीं है. So just for our convenience, we'll be using combination over here just to determine that how many sample points for the specific sample space exists. Okay, then comes the number of sample points in the entire sample space. वो आपके पास टोटल 10 balls हैं, 10 balls में से 6 balls की सिलेक्शन होनी है, तो टोटल आपके पास 210 सैम्पल पॉइंट्स बनते हैं जो कि इंटायर सैम्पल स्पेस के हैं. तो इनकी रेशियो ले लें आप, सिंपली इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन कर दें. नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इवेंट ए के क्या है? 80.
उसको डिवाइड कर दे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द एंटायर सैंपल स्पेस, जो कि कितने हैं 210. So the ratio of 80 by 210 is equal to 8 by 21. So this is the probability that 3 white and 3 black balls will be selected. If out of 10 balls, we need to select these 6 balls. Okay. One more thing, class. Probability सिर्फ practice से आती है. You need to practice a lot of questions. I have already shared the handouts in your Google Classroom. You can practice questions from there, and I have uploaded the book as well. You can just for the sake of practice, you can practice the exercise given in that book, so that you can grasp and understand the concept more clearly. Okay. So two cards are drawn from a well-shuffled pack of 52 cards. What is the probability that both the cards are of same color? अच्छा, अब आपके पास क्या कहा जा रहा है? दो कार्ड्स की सिलेक्शन होनी है आउट ऑफ 52 कार्ड्स. What is the probability that both cards are of the same color? जो दो कार्ड्स आप चूज करोगे वो दोनों सेम कलर के होने चाहिए. जिस चीज की प्रोबेबिलिटी मांगी जाती है हम उसी का ही इवेंट डिफाइन करते हैं. Both cards are of the same color, so you'll just define the event A, that it is stated as two cards are of the same color. Classical approach के accordingly, number of favorable outcomes in an event A divided by number of sample points in the entire sample space. तो आप किस तरह करोगे? ओके, टोटल आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं. 52 कार्ड्स में से कितने कार्ड्स की सिलेक्शन होनी है? 2 कार्ड्स की सिलेक्शन होनी है. अब कैटेगरीज आप किस तरह बनाओगे? एक कैटेगरी आप बना लो, क्योंकि आपके पास कह रहे हैं वो क्वेश्चन में कि बोथ कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर. तो हम कैटेगरीज इस तरह से डिफाइन करेंगे कि टोटल कलर्स होते कितने हैं. सो देयर आर टोटल 2 कलर्स. The one is that are red in color, and the other one that are black in color. So we have two categories of colors, the one in black and the other one that are red in color. So how many red and how many black cards? We have two suits that are red in color and two suits that are black in color. So in each suit there are 13 cards. That means two suits are there that are red in color. So 13 plus 13 is equal to total 26 red cards, and we have 26 black cards. And 26 plus 26 is equal to 52. You can just cross check over here that whether you're just missing any sort of category or you haven't defined any category clearly. तो आप वो क्रॉस चेक कर सकते हो. 52 कार्ड्स में से दो कार्ड्स आपने सिलेक्ट कर ली. आपसे वो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर. दोनों कार्ड्स एक ही कलर के होने चाहिए. तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों या तो रेड होंगे. अगर दोनों रेड होंगे तो ऑब्वियसली ब्लैक में से कोई नहीं होगा. दैट मीन्स 0 ब्लैक कार्ड्स. इसी तरह दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है? दो कार्ड्स चूज करने हैं. हो सकता है दोनों कार्ड्स आपके पास क्या हो? ब्लैक हो कलर में. तो अगर दोनों कार्ड्स ब्लैक है दैट मीन्स कि रेड में से कोई सिलेक्शन नहीं होगी. तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे? Probability of event A, that is equal to number of favorable outcomes in an event A divided by number of sample points in the entire sample space. ठीक है, इवेंट A के सैंपल पॉइंट्स क्या आ गया आपके पास? 26C2, जो कि आपके पास 26C2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 26C0. एक ये पॉसिबिलिटी है. प्लस अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 26 रेड कार्ड्स में से कोई रेड कार्ड ना चूज किया गया हो. दैट मीन्स 26C0. और अगर रेड कार्ड्स में से सिलेक्शन नहीं हो रही दैट मीन्स
कि 26 ब्लैक कार्ड्स में से, जो कि ये हैं, उसमें से 2 ब्लैक कार्ड्स चूज किए जा रहे हैं। तो 26C2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द एंटायर सैंपल स्पेस। वो टोटल आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? वो 52C2, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आ गई। ठीक है जी। तो सिंपली आप क्या करते हो, जो कैटेगरीज होती हैं उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाए तो उनको ऐड किया जाता है, लेकिन कैटेगरीज को आपस में आपने हमेशा मल्टीप्लाई ही करना है। जिस तरह हमने 26C2 मल्टीप्लाई बाई 26C0 किया, वो आपके पास ये वाला पोर्शन है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या बनती है कि इन कार्ड्स में से ये वाले कार्ड्स चूज किए गए हो, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। तो इन दो पॉसिबिलिटीज को हमने ऐड कर लिया, लेकिन आपस में इनको मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। क्रॉस चेक करने के लिए आप इस तरह कर सकते हो, 2 + 0 is equal to 2 total cards. 0 + 2 is equal to 2, that means total 2 cards are selected when both cards are black in color. और इसका क्या मतलब है कि 2 कार्ड्स आप चूज कर रहे हो एंड बोथ कार्ड्स आर रेड इन कलर। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज थी, उसको आपने इस तरह लिस्ट कर लिया। यू कैन इजीली कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी that if 2 cards are selected out of 52 cards, both cards will be of the same color. ठीक है जी। तो कमिंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशन, इवेंट आपने डिफाइन कर लिया, प्रोबेबिलिटी को आपने क्लासिकल अप्रोच के अकॉर्डिंगली डिफाइन कर लिया, दैट इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन एन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द एंटायर सैंपल स्पेस। ठीक है। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन एन इवेंट ए मींस 26 रेड कार्ड्स में से दोनों रेड कार्ड्स सिलेक्ट किए जा सकते हैं, बट फिर 26 ब्लैक कार्ड्स में से कोई ब्लैक कार्ड नहीं चूज किया जाएगा। एक ये पॉसिबिलिटी, प्लस दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, 26 रेड कार्ड्स में से कोई रेड कार्ड नहीं सिलेक्ट हुआ। ऑन द अदर हैंड आपके जो 26 ब्लैक कार्ड्स हैं, उन ब्लैक कार्ड्स में से 2 कार्ड्स आप सिलेक्ट कर रहे हो। तो टोटल 650 सैंपल पॉइंट्स एग्जिस्ट इन द केस व्हेन बोथ कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, divided by number of sample points in the entire sample space. That means total 52 कार्ड्स में से आपने 2 कार्ड्स की सिलेक्शन ही करनी थी। तो इन दोनों की रेशियो ले लें, सिंपली इसमें पुट किया तो आपके पास रेशियो आ गई, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई 25/51। ओके क्लास, एक चीज़ में आप कंफ्यूज ना हो जाना कि मैंने सिर्फ नीचे एक बार 52/52C2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये एलसीएम लिया है। एलसीएम लोगे तो एक बार ही ये चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल okay. So coming towards the next question, the next question is stated as, in the game of poker, find the probability of getting. Now getting what? The first part is stated as all spades are selected. That means, अच्छा एक चीज याद रखें, जब भी आपसे बात की जाएगी कि in the game of poker या in the game of bridge, you need to know that in the game of poker you always select 5 cards. Okay, so out of 52 cards, you need to select 5 cards when you are playing the game of poker. Find the probability of getting all spades. अब इसको इवेंट ए के नाम से डिफाइन कर दो। इवेंट ए आप किस तरह डिफाइन करोगे? दैट ऑल स्पेड्स आर सिलेक्टेड। क्लासिकल अप्रोच के अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन एन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द एंटायर सैंपल स्पेस। इवेंट ए आपके पास क्या है कि ऑल स्पेड्स आर सिलेक्टेड। अब आप किस तरह करोगे? टोटल आपके पास कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से आपने पोकर की बात की जा रही है, दैट मीन्स 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स की सिलेक्शन होगी। अगर बात की जाती है इन द गेम ऑफ ब्रिज, इन द गेम ऑफ ब्रिज मीन्स यू नीड टू सिलेक्ट 13 कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स। लेकिन यहाँ पर पोकर की बात की जा रही थी, तो पोकर के केस में हमेशा आप क्या करोगे? आप 5 कार्ड्स ही चूज करोगे। ओके अब
उस केस में आपके पास कैटेगरीज क्या बन रही हैं? एक तो आप जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हो उस चीज की कैटेगरी डिफाइन कर लो। हम निकाल रहे हैं कि स्पेड्स हो। क्लियरली क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल स्पेड्स। ये फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, सारे के सारे स्पेड्स हों। तो एक कैटेगरी स्पेड्स की आ गई। अब स्पेड्स क्या है? ये एक सूट है। में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल इसमें 13 कार्ड्स होते हैं। नाउ 13 प्लस डैश इज नॉट इक्वल टू 52। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अनदर कैटेगरी जिसको हम अदर्स का नाम दे देते हैं, जो कि खुद डिफाइन कर रहे हैं। नाउ 13 माइनस 52 इज इक्वल टू हाउ मेनी अदर कार्ड्स? आपके पास टोटल 39 अदर कार्ड्स बनते हैं, जिसमें आपके पास बाकी 3 सूट्स आ जाते हैं। एक आ गया हार्ट, एक आ गया डायमंड, और तीसरा आ गया क्लब। ये तीनों सूट्स के कार्ड्स आप जब लिखोगे उसको, तो अदर्स की कैटेगरी में डिफाइन कर लो। 13 प्लस 39 इज इक्वल टू टोटल 52 कार्ड्स। अब इन 52 कार्ड्स में से आपने 5 कार्ड्स की सिलेक्शन करनी है। और सिलेक्शन किस तरह से करनी है कि सारे के सारे कार्ड्स क्या हों? ऑल कार्ड्स बिलोंग टू स्पेड्स। तो यहाँ क्या आएगा? 13 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स ही चूज करने हैं, और पांचों के पांचों कार्ड्स क्या होंगे? स्पेड्स। नाउ 5 प्लस डैश इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स अदर्स की कैटेगरी में से कोई कार्ड नहीं सिलेक्ट हुआ। इसको लिखोगे किस तरह आप? ठीक है, ये क्लासिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग यही डेफिनेशन बनती है। इवेंट ए की क्या बात की जा रही है कि 13 स्पेड्स के कार्ड्स में से कितने कार्ड्स आपने चूज किए? 5 कार्ड्स चूज किए, क्योंकि सारे के सारे स्पेड्स ही होने चाहिए थे। और अदर्स के 39 कार्ड्स में से कोई कार्ड सेलेक्ट नहीं हो रहा। 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स आप चूज कर रहे हो। तो ये रेशियो आप जब आप लोगे तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इवेंट ए की कि पांचों के पांचों कार्ड्स क्या हैं? स्पेड्स। ठीक है, सोल्यूशन देख लें आप, इसका स्लाइड्स पे अवेलेबल है। ऑल स्पेड्स, दैट मीन्स 13 स्पेड्स में से टोटल 5 स्पेड्स आप चूज करोगे, और उसको मल्टीप्लाई किया कि 39 अदर कार्ड्स में से कोई कार्ड सिलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या है? 1287। 1287 आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके पास 5 कार्ड्स जो चूज करोगे वो आपके पास क्या है? वो सारे के सारे स्पेड्स को बिलोंग करते हो, और बाकी अदर 39 कार्ड्स में से कोई कार्ड सिलेक्ट नहीं होगा। और फिर क्या करो? उसको डिवाइड कर लो किसके साथ? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द एंटायर सैंपल स्पेस। वो आपके पास टोटल कितने? 52 कार्ड्स हैं। 52 कार्ड्स में से आपने 5 कार्ड्स चूज करने हैं। तो 52C5 इज नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द एंटायर सैंपल स्पेस। मींस टोटल 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स की सिलेक्शन होनी थी। इन दोनों की रेशियो ले लोगे तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किस चीज की? दैट ऑल कार्ड्स सिलेक्टेड will belong to the suit that is spades. Okay, now coming towards the next part. The next part is stated as 3 aces are selected. 3 aces. तो सिंपली हमें पता है कि इसको भी वैसे ही करना है जिस तरह स्पेस का क्वेश्चन किया है। पहले तो इवेंट डिफाइन कर लोगे, जस्ट लाइक इवेंट बी इज डिफाइंड दैट 3 aces will be selected. Now just wait a second.
Okay. Now 3 aces will be selected. टोटल आपके पास कितने कार्ड्स हैं? 52. पोकर की बात की जा रही है, दैट मीन्स 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स की सिलेक्शन होनी है. अब वो 5 कार्ड्स जो सिलेक्ट करने हैं, कैटेगराइज कर दो उसको कि आपके पास पांचों के पांचों एसेस हों. नहीं, पांचों के पांचों एसेस ना हो, उन्होंने कहा है 3 एसेस, 3 एसेस हों. तो आपको पता होना चाहिए एसेस होते कितने हैं टोटल. हमें पता है कि टोटल 4 सूट्स होते हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड्स. और इन चारों सूट्स में आपके पास एक एक एस होता है. अगर एक एक एस मींस वो ए वाला कार्ड है, तो टोटल कितने एसेस हुए? टोटल आपके पास 4 एसेस हो गए. नाउ 4 इज नॉट इक्वल टू 52. दैट मींस देयर एग्जिस्ट अनदर कैटेगरी जिसको अदर्स का आप नाम दोगे. नाउ 52 माइनस 4, वो आपके पास टोटल 48 अदर कार्ड्स बनते हैं. नाउ 48 प्लस 4 इज इक्वल टू टोटल 52 कार्ड्स. अब ये पूरा कंप्लीट डेक हो गया है. अब इन 52 कार्ड्स में से आपने 5 कार्ड्स की सिलेक्शन करनी है. और सिलेक्शन किस तरह से करनी है कि आपके पास जो 3 कार्ड्स हैं वो किसको बिलोंग करें? एसिस को. तो अगर 3 कार्ड्स एसिस को बिलोंग कर रहे हैं, 3 प्लस डैश इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5. 5 कार्ड्स चूज करने थे, 3 तो एसेस आ गए. इट मींस बाकी के जो 2 कार्ड्स हैं वो अदर्स की कैटेगरी में से आएंगे, जो कि टोटल कितने हैं? वो 48 अदर कार्ड्स हैं. ठीक है. तो 4C3 मल्टीप्लाई बाय 48C2 डिवाइडेड बाय 52C5. बिल्कुल ऐसे लिख लो. So this will be your probability that out of 52 cards, you're selecting 5 cards, and out of these 5 cards, 3 cards are the one that belongs to aces, and rest of the 2 cards belong to the other category. So taking the ratio of both of these sample points and the event, you can compute the probability of event A. And this was the solution. आपने उसको इवेंट बी का नाम दे दिया था, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन एन इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द एंटायर सैंपल स्पेस. तो ये आपके पास रेशियो आ गई है 4C3 इंटू 48C2, और डिवाइड कर दो उसको किसके साथ? 52C5 के साथ. ये आपके पास क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. Okay. Now coming towards the next question. Now the question is stated as an employer wishes to hire 3 people from a group of 15 applicants, 8 men and 7 women, all of whom are equally qualified to fill the position. If he selects the 3 at random, what is the probability that all 3 will be men? Second part क्या है? At least one will be a woman. तो आप क्या करो, सबसे पहले आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज की. वो पहले क्लियर क्वेश्चन तो देख लें. सिनेरियो क्या है ये इसका, इस क्वेश्चन का, कि एक एम्प्लॉयर चूज किया जाना है. एक एम्प्लॉयर चूज करना चाह रहे हैं 3 लोगों को फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 15 एप्लीकेंट्स. अब आपके पास 15 एप्लीकेंट्स में से 8 मेन है एंड 7 विमेन है, और सारे के सारे इक्वली क्वालिफाई करते हैं उस पोजीशन को फिल करने के लिए. इफ ही सिलेक्ट्स द 3 एट रैंडम, टोटल एप्लीकेंट्स कितने हैं? 15 एप्लीकेंट्स. 15 एप्लीकेंट्स में से कितने एप्लीकेंट्स चूज करने हैं? 3 एप्लीकेंट्स आपने चूज करने हैं. ठीक है. 3 एप्लीकेंट्स जब आप चूज करोगे, उसमें से आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ऑल 3 विल बी मेन. तीनों के तीनों क्या होंगे? वो मेन होंगे. तो आप इसको क्लियरली पहले इवेंट ए डिफाइन करो, दैट ऑल 3 विल बी मेन. तो पहले इवेंट ए डिफाइन कर दिया, ऑल 3 विल बी मेन.
और क्लासिकल अप्रोच के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन एन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द एंटायर सैंपल स्पेस। क्या करोगे? आपके पास टोटल कितने एप्लीकेंट्स हैं? 15 एप्लीकेंट्स। 15 एप्लीकेंट्स में से 3 एप्लीकेंट्स चूज करने हैं और उन्होंने कहा है कि ऑल 3 विल बी मेन। एक कैटेगरी आपके पास मेन की आ गई, दूसरी कैटेगरी आपके पास वेमेन की आ गई। मेन कितने हैं टोटल आपके पास? मेन आपके पास टोटल 8 हैं एंड वेमेन कितने हैं? 7। 8 men and 7 women. Now 8 plus 7 is equal to total 15 applicants. Now out of these 15 applicants, you have to select 3 applicants. And you have to compute the probability that all 3 will be men. अगर तीनों के तीनों men होंगे, that means women में से कोई select नहीं होगा। और इस चीज का क्या मतलब है? 3 plus 0 is equal to 3. इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ गई? उसको इवेंट ए डिफाइन करते हुए आपने क्या लिख लिया? दैट 8 मेन में से तीनों के तीनों मेन सिलेक्ट हो रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 7 विमेन में से कोई विमेन चूज नहीं हो रही। ठीक है, और उसको डिवाइड कर दो किसके साथ? के 15 एप्लीकेंट्स में से आपने कितने एप्लीकेंट्स चूज कर लिए? 3 एप्लीकेंट्स आपने चूज कर लिए। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर इवेंट ए। नाउ कम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन विल बी अ विमेन। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, उससे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि आपके पास सोल्यूशन क्या था। वो ये था 8 मेन में से 3 मेन और 7 विमेन में से कोई विमेन नहीं चूज हुई। उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है? उसकी 56 पॉसिबिलिटीज हैं जो कि इस स्पेसिफिक इवेंट में आती हैं। और देन आपके पास क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन द एंटायर सैंपल स्पेस। दैट मींस 15 एप्लीकेंट्स में से 3 एप्लीकेंट्स अगर चूज करने हैं तो वो 15C3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, जो कि टोटल 455 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। यहाँ पर भी क्लियरली पता चल रहा है कि 455 पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होता कि हम सारे सैंपल पॉइंट्स को एनलिस्ट करें। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी आर यूजिंग कॉम्बिनेशन ओवर हियर। अगर आप, जरूरी नहीं है आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी करो, आप इसको दूसरे सैंपल पॉइंट्स एनलिस्ट करके उसमें से प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हो, लेकिन वही वाली बात है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एनलिस्ट ऑल द पॉसिबिलिटीज। सो जस्ट टू अवॉइड दैट थिंग, वो इसको क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन को अप्रोच कर लेते हैं। ठीक है जी। एटलीस्ट वन विल बी अ वुमेन। अब आपके पास क्या है? एटलीस्ट एक वुमेन हो। नाउ व्हाट डज इट मीन? एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। मिनिमम जहां तक जा रहा है और मैक्सिमम जहां तक जा सकता है। दे आर सेइंग एटलीस्ट वन, दैट मीन्स मिनिमम वन विमेन नीड्स टू बी सिलेक्टेड, और मैक्सिमम जितनी विमेन आ सकती हैं वो इस केस में आएंगी। आपके पास टोटल आपने कितनी एप्लीकेंट्स चूज करने हैं? 3 एप्लीकेंट्स ही चूज करने हैं, तो मैक्सिमम 3 वेमेन ही चूज किए जा सकते हैं। इससे ज्यादा चूज आप नहीं करोगे क्योंकि एप्लीकेंट्स ही 3 चूज करने थे। तो एटलीस्ट वन मीन्स कि मिनिमम 1 वेमेन और मैक्सिमम 3 वेमेन तक आप चूज कर सकते हो अगर 15 एप्लीकेंट्स में से 3 एप्लीकेंट्स की सिलेक्शन होनी है। ठीक है जी। सो जस्ट डिफाइन द इवेंट। इवेंट किस तरह डिफाइन कर लिया? एटलीस्ट वन विल बी अ विमेन, इसको इवेंट बी का नाम दे दो, और देन आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो इवेंट बी की। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या है? कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन एन इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द एंटायर सैंपल स्पेस। तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी किस तरह लिखोगे? टोटल आपके पास 15 एप्लीकेंट्स थे एंड 15 एप्लीकेंट्स में से 3 एप्लीकेंट्स आपने चूज करने हैं। मेन कितने हैं आपके पास और विमेन कितनी है? मेन आपके पास थे 8 मेन, 8 मेन थे एंड 7 विमेन थे। नाउ 8 plus 7 is equal to total 15 applicants. Now out of these 15 applicants, you need to select the 3 applicants and find the probability that at least one will be a woman. कम से कम एक वुमेन हो,
दैट मीन्स मिनिमम 1 विमेन और मैक्सिमम कितनी विमेन हो सकती हैं? मैक्सिमम 3 विमेन हो सकती हैं, क्योंकि 15 में से 3 ही सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे भी 3 लिख लो अगेन। और अगर आप उसको, अब ये वाला जो इनकम्प्लीट पोर्शन है उसको किस तरह फिलअप करोगे? अगर 1 है विमेन, 1 इज नॉट इक्वल टू 3, दैट मीन्स दूसरी कैटेगरी में से बाकी एप्लीकेंट्स चूज हुए हैं। 1 प्लस 2, 1 plus 2 is equal to total 3 applicants. Same goes for this one. This one, अगर 2 women select हुई हैं तो 2 women अगर select होने का क्या मतलब है? हमने 3 applicants choose करने थे तो एक आपके पास men में से आया होगा, तो 1 plus 2 is equal to 3. और अगर तीनों के तीनों आपके पास women choose कर ली हैं और हमने 3 applicants ही choose करने थे, that means men की कैटेगरी में से कोई applicant choose नहीं हुआ. I'm repeating it again. 15 एप्लीकेंट्स में से 3 एप्लीकेंट्स चूज किए और वो 3 एप्लीकेंट्स किस तरह चूज करने हैं कि एटलीस्ट एक उसमें विमेन हो. एटलीस्ट मींस मिनिमम, मिनिमम जो चीज लिखी है, और मैक्सिमम जहां तक जा सकता है वहां तक आप उसकी पॉसिबिलिटीज को लेके जाएंगे. सो मिनिमम 1, मैक्सिमम 3 तक जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम 3 एप्लीकेंट्स ही चूज करने थे. तो इसको लिखोगे किस तरह? एट C2 multiply by 7C1, 7C1 प्लस दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है? 8C1 मल्टीप्लाई बाय 7C2, 7C2 प्लस थर्ड क्या पॉसिबिलिटी है? 8C0 मल्टीप्लाई बाय 7C3. These are the 3 cases that will exist when you need to select 3 applicants in a case when at least 1 woman will be selected. Divided by number of sample points in the entire sample space, that is 15C3. So this is your probability of event A when at least 1 woman will be selected. इसका solution आप slides में भी देख लो. आपके पास क्या है? 8 women थी, उसमें से 2 women choose हुई हैं. Just wait a second. 8 men थे, 7 women है और 8 men है. 7 women में से अगर 1 women चूज हुई है तो बाकी 2 एप्लीकेंट्स आपके मेन की कैटेगरी में से आ रहे हैं. और अगर आपके पास 2 women चूज हो रही हैं तो ऑब्वियसली एक आपका जो एप्लीकेंट रह जाएगा वो मेन की कैटेगरी में से आएगा. और सेम गोज फॉर दिस वन. यहाँ पर अगर आप तीनों एप्लीकेंट्स विमेन की कैटेगरी में से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है फिर मेन की कैटेगरी में से कोई नहीं आ रहा. तो 8 मेन में से कोई मेन चूज नहीं हो रहा. सो जस्ट एड 3 of these cases, you'll get the number of favorable outcomes of an event A, of an event B, और उसकी रेशो ले लो किसके साथ? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द एंटायर सैंपल स्पेस. एंटायर सैंपल स्पेस में आपके पास क्या था? टोटल 15 एप्लीकेंट्स में से 3 एप्लीकेंट्स चूज किए, तो वो 455 पॉसिबिलिटीज बनती हैं. So just take the ratio of both of these favorable outcomes and the entire sample space. You'll get the probability 57/65. I hope you've understood whatever is taught in this lecture, but still if you'll find any difficulty, you may ask me via email or you can just comment below the given video. All right? Okay, coming towards the last question. Yes, this is the last question of today's lecture. Now what the question is stated as: 4 items are taken at random from a box of 12 items and inspected. The box is rejected if more than 1 item is found to be faulty. If there are 3 faulty items in the box, find the probability that the box is accepted. And second part में क्या है? The box is rejected. अब आपको वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपने कितनी आइटम्स चूज करनी है? आपने 4 आइटम्स सिलेक्ट करनी है
आउट ऑफ 12 आइटम्स, ठीक है। और 12 आइटम्स में से जब 4 आइटम्स चूज करोगे, उन्होंने कहा है बॉक्स को रिजेक्ट कर दो इफ मोर देन वन आइटम इज फाउंड टू बी फॉल्टी। अगर उस बॉक्स में एक से ज्यादा आइटम फॉल्टी आ जाती हैं तो हमने बॉक्स को रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। और वो कह रहे हैं टोटल बॉक्स में है कितनी, 3 फॉल्टी आइटम्स तो हैं, ठीक है। 12 आइटम्स हैं तो 12 आइटम्स में से 3 फॉल्टी आइटम्स हैं। अगर 12 आइटम्स में से 3 फॉल्टी आइटम्स हैं तो गुड आइटम्स कितनी होंगी, वो 9 गुड आइटम्स होंगी, बिकॉज 9 प्लस 3 इज इक्वल टू टोटल 12 आइटम्स। सिंपल करोगे क्या क्वेश्चन में, पहले तो इवेंट डिफाइन कर लो। इवेंट डिफाइन करो दैट द बॉक्स इज एक्सेप्टेड, उसको इवेंट ए का नाम दे दो। इवेंट ए को डिफाइन किया, द बॉक्स इज एक्सेप्टेड, और क्लासिकल अप्रोच के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन एन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द एंटायर सैंपल स्पेस, इसकी रेशियो लोगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आ जाएगी। अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स इज एक्सेप्टेड, बॉक्स को एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन में देखो उन्होंने कहा है बॉक्स को रिजेक्ट कर दो इफ मोर देन वन आइटम इज फाउंड टू बी फॉल्टी। अगर एक से ज्यादा आइटम खराब आ रही है या फॉल्टी आ रही है उसको फिर रिजेक्ट करना है, तो एक्सेप्ट कब करोगे, देखो टोटल आपके पास 12 आइटम्स, 12 आइटम्स में से 4 आइटम्स चूज करनी है। एक कैटेगरी क्या है, फॉल्टी, दूसरी कैटेगरी क्या है, गुड। उन्होंने क्लियरली बता दिया है इफ देयर आर 3 फॉल्टी आइटम्स इन द बॉक्स, दैट मीन्स 3 फॉल्टी आइटम्स आ रही हैं, 3 इज नॉट इक्वल टू 12, दैट मीन्स बाकी गुड आइटम्स भी हैं। बाकी गुड कितनी होंगी, 3 को माइनस कर दो 12 के साथ, तो आपके पास 9 गुड आइटम्स आ रही हैं। 9 plus 3 is equal to total 12 items. Out of these 12 items, you have to select 4 items. अब 4 items किस तरह चूज करनी है कि बॉक्स को क्या किया जाए, एक्सेप्ट। उन्होंने कहा है बॉक्स को रिजेक्ट करो, कब रिजेक्ट करोगे, अगर तो आपके पास एक से ज्यादा फॉल्टी आइटम आ रही है तो रिजेक्ट करोगे। तो एक्सेप्ट कब करोगे, जब आपके पास एक फॉल्टी आइटम आ जाए तब भी बॉक्स को एक्सेप्ट किया जाता है, या एक से कम, एक से कम के क्या मतलब है कि कोई फॉल्टी आइटम आप चूज नहीं करोगे। तो कोई फॉल्टी आइटम चूज करने का मतलब है x इज इक्वल टू 0, दैट नो फॉल्टी आइटम इज प्रेजेंट इन द बॉक्स, सो यू जस्ट एक्सेप्ट द बॉक्स। और अगर आपके पास कह रहा है वन फॉल्टी आइटम, तब भी आप क्या करोगे, बॉक्स को एक्सेप्ट ही करोगे, क्योंकि रिजेक्ट आपने सिर्फ तभी करना है जब एक से ज्यादा फॉल्टी आइटम्स हो। एक से ज्यादा का मतलब है 2 फॉल्टी आइटम्स आए तब भी बॉक्स को रिजेक्ट करोगे, 3 फॉल्टी आइटम्स आए तब भी रिजेक्ट ही करोगे। मैक्सिमम 3 ही फॉल्टी आइटम्स आ सकती हैं क्योंकि पूरे बॉक्स में ही 3 आइटम्स हैं जो कि फॉल्टी हैं। तो एक्सेप्ट कब करोगे, जब आपके पास कोई फॉल्टी आइटम नहीं है, या अगर आपके पास एक फॉल्टी आइटम है। तो अगर कोई फॉल्टी आइटम नहीं है, दैट मीन्स 4 आइटम्स चूज करनी है, चारों की चारों क्या होंगी, गुड होंगी, ठीक है जी। और अगर आपके पास सेकंड केस देखो, अगर एक फॉल्टी है तो बाकी जो 3 आइटम्स है वो गुड है, तो तब आप क्या करोगे, बॉक्स को एक्सेप्ट करोगे। तो इसकी पॉसिबिलिटीज कैसे लिखोगे, 3C0 मल्टीप्लाई बाय 9C4 प्लस 3C1 मल्टीप्लाई बाय 9C3 divided by 12C4. So this is your probability that the box is accepted. तो ये बॉक्स को एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास, ठीक है जी। So coming towards the slides, क्लियरली इसका सोल्यूशन आप देख सकते हो। तीन फॉल्टी आइटम्स में से अगर कोई फॉल्टी आइटम नहीं आ रही, दैट मीन्स चारों की चारों गुड आइटम्स आ रही हैं, तब भी बॉक्स एक्सेप्ट किया जा रहा है। और अगर 3 फॉल्टी आइटम्स में से एक फॉल्टी आइटम आ रही है एंड रेस्ट ऑफ द 3 आइटम्स आर गुड, तो देन यू विल बी एक्सेप्टिंग द बॉक्स। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज को ऐड कर लो, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है, 378 पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि बॉक्स को एक्सेप्ट किया जा सकता है। नाउ 378 कितने में से बन रही है, टोटल 495 पॉसिबिलिटीज में से बन रही हैं, अगर 12 आइटम्स में से 4 आइटम्स आप चूज करते हो तो।
इन दोनों की रेशियो ले लो, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आ गई. ओके, कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, दैट द बॉक्स इज रिजेक्टेड. उसने कहा है बॉक्स को रिजेक्ट कर दो. तो बॉक्स को कब रिजेक्ट किया जाएगा, उस चीज की प्रोबेबिलिटी. टोटल आपके पास कितनी है? 12 आइटम्स. 12 आइटम्स में से 4 आइटम्स चूज करनी है. फॉल्टी कितनी थी? 3. गुड कितनी थी? 9. बॉक्स को रिजेक्ट करोगे कब? इफ मोर देन वन आइटम इज फाउंड टू बी फॉल्टी. ये स्टेटमेंट आपके पास क्वेश्चन में क्लियरली डिफाइन किया है कि एक से ज्यादा अगर आ रही है तो आपने बॉक्स को रिजेक्ट करना है. एक से ज्यादा का मतलब है 2 फॉल्टी आइटम्स, तब भी रिजेक्ट करोगे. 3 फॉल्टी आइटम्स, तब भी रिजेक्ट करोगे. मैक्सिमम 3 तक लिखोगे क्योंकि टोटल की 3 फॉल्टी आइटम्स बॉक्स में है. नाउ 2 plus dash is equal to 4. That means 2 plus 2 is equal to 4. 3 plus dash is equal to 4. 3 plus 1 is equal to 4. तो probability कैसे लिखोगे? 3C2 multiply by 9C2 plus 3C3 multiply by 9C1. इसको डिवाइड कर दो किसके साथ? 12C4 के साथ. तो ये रेशो आप दोनों चीजों की ले लोगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि आपके पास बॉक्स रिजेक्ट होगा अगर आपके पास 2 फॉल्टी आइटम्स आती हैं या 3 फॉल्टी आइटम्स आती हैं. ठीक है. तो कमिंग टुवर्ड्स द सोल्यूशन. सोल्यूशन में भी वही चीज है कि आपके पास क्या है, 2 आइटम्स की सिलेक्शन हुई जो कि फॉल्टी थी, तब भी रिजेक्ट हो रहा है. और अगर तीनों की तीनों फॉल्टी आइटम्स चूज कर रहे हो तब भी रिजेक्ट ही करोगे. इसकी रेशियो ले लो किसके साथ कि टोटल 12 बॉल्स में से 12 आइटम्स में से 4 आइटम्स आप चूज कर रहे हो तो 495 पॉसिबिलिटीज बनती हैं. तो इन दोनों की रेशियो ले ली आपने. रेशियो लोगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया, दैट द बॉक्स इज रिजेक्टेड. So this was all about today's lecture. Just go through the complete video, try to understand and try to digest the concept which I have delivered in today's lecture. If you find any difficulty, we'll be having a live session soon. We can discuss the difficulties over there. Thank you so very much. Stay blessed. Allah Hafiz.